Hello students, today we are going to discuss about stoichiometry of solutions, second part of stoichiometry or reactions in solutions. Most of the reactions are carried out in solutions. Therefore, this is one of the most important topic in your syllabus for 11th class as well as for 12th class and also for competition examination. So listen it carefully. Let us start. We have solution. Solutions are mainly two types on the basis of composition, homogeneous and heterogeneous. Homogeneous solutions are those which having same composition. Throughout the bulk means interior part or only one physical state. Whereas heterogeneous solutions are those which do not have same composition throughout the bulk or in the whole solution and having more than one phase are known as heterogeneous solution. Homogeneous के example aqueous solution of sugar, common salt and glucose in water. Heterogeneous के examples में surrounding में milk है, mixture of oil and water है, they are heterogeneous. तो ये दो classification है solutions की on the basis of their composition. Now solution is mainly composed of two components, solute plus solvent. Solvent is always solute is always in less number of moles or amount. Solvent is always in large number of moles or amount. On the basis of number of components, solutions are categorized as binary solution. Two components अगर होंगे तो trinary solution जिसमें तीन component होंगे, quaternary solution जिसमें चार component होंगे. We will discuss only about binary solution here. और बाइनरी सॉल्यूशंस भी किस तरह के होमोजेनियस सॉल्यूशंस की बात करेंगे. Always the physical state of solution depends on physical state of solvent. हमेशा ध्यान रखिएगा जो किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट उसकी सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करती है. Therefore, on the basis of physical state of solvent, there are 9 types of solutions: solid into solid, liquid into solid, gas into solid. Again, solid into liquid, liquid into liquid, gas into liquid. Then solid into gas, liquid into gas and gas into gas. Here we will only discuss about the liquid solutions, that is solid into liquid, liquid into liquid and gas into gas. Gas into liquid. 3 लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे. सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड इनटू लिक्विड, गैस इनटू लिक्विड. Among these 9 types of solutions, 8 solutions may be homogeneous or may be heterogeneous, but only one type of solution, that is gas into gas, is always homogeneous mixture because gases are completely miscible into each other. Now, solutions are defined on the basis of their strength. Strength means on the basis of their concentration. What is concentration of the solution? Amount of solute present in given solution.
गिवन सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इट्स जनरल यूनिट इज ग्राम पर लीटर। इसकी जो जनरल यूनिट है ग्राम पर लीटर में दी जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस इज आल्सो गिवन by two types. One is qualitative concentration and other is quantitative concentration. Many times we heard about dilute solutions or concentrated solutions. Dilute and concentrate indicates the qualitative concentration of the solutions. We cannot predict exact amount of solute in qualitative concentration. Dilute के केस में हम कह सकते हैं इसमें solute का amount कम है, concentrated के केस में भी कह सकते हैं इसमें solute का amount है ज़्यादा। exact amount of solute कितना present है given solution में वो हम qualitative concentration से नहीं बता सकते, which is given by quantitative concentration। तो यहाँ पर हम quantitative concentration के बारे में ही discuss करेंगे later on, जो भी lecture होगा आगे। Now, concentration is given in different units: weight, volume concentration, weight concentration, and volume concentration. Weight of solute, weight of solute, volume of the सॉल्यूशन। वेट में सॉल्यूट का वेट और वेट ऑफ सॉल्यूशन। एक कंसंट्रेशन की यूनिट है जहां पर वेट ऑफ सॉल्वेंट लिया जाएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। यहां पर वॉल्यूम भी किसका होगा, सॉल्यूट का, और यहां पर भी वॉल्यूम किसका, यहां पर वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का। वॉल्यूम में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के वॉल्यूम यूज करेंगे। वेट में सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूशन का भी वेट यूज करेंगे, बट इन वन यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन वेट ऑफ सॉल्वेंट भी यूज करेंगे। इसको ध्यान रखना है, एक वॉल्यूम के अंदर सॉल्यूट का वेट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम यूज होगा। इनको फर्दर कैटेगराइज किया जाता है किसमें, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। स्ट्रेंथ को एस से लिखा जाता है, कैपिटल एस। मोलैरिटी को कैपिटल एम से लिखा जाता है, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से, फॉर्मेलिटी को कैपिटल एफ से, और ये है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। या इसको मास बाई वॉल्यूम भी कहते हैं, मास बाई वॉल्यूम। वेट में मोलैरिटी है, परसेंटेज वेट बाई वेट, इसको मास बाई मास या मास परसेंटेज भी कहा जाता है। और तीसरी जो यूनिट है वो है आपके पास मोल फ्रैक्शन। इसको स्मॉल एम से लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंटेशन मास परसेंटेज ही होगा, इसका कैपिटल एक्स और काई भी लिखा जाता है। दिस इज नॉन एज काई। थर्ड यूनिट इज परसेंटेज वॉल्यूम, V बाई V, इसको बोलते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। इट इज गिवन इन केस ऑफ गैस सॉल्यूशन और लिक्विड सॉल्यूशन। नाउ द यूनिट्स ऑफ दिस डिफरेंट कंसंट्रेशन, इनको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज ग्राम पर लीटर, दिस इज मोल पर लीटर, दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, दिस इज ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास
पर लीटर। ये यूनिटलेस होगा बिकॉज ये परसेंटेज है। मोलिलिटी इज गिवन बाय मोल पर किलोग्राम। ये यूनिटलेस अगेन परसेंटेज है। ये भी यूनिटलेस है बिकॉज ये मोल्स का रेशियो होता है, तो ये भी यूनिटलेस होगा और यहाँ पर ये भी यूनिटलेस है। In our syllabus, among these different type of units, we have molarity, then molality, mass percentage and mole fraction। 4 यूनिट्स हैं 11th और 12th क्लास में। अपने सिलेबस में इन्हीं 4 यूनिट्स के क्वेश्चंस आते हैं हर एग्जाम में 11th और 12th क्लास में। कंपटीशन सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बाकी यूनिट्स भी प्रेजेंट है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस ओनली अबाउट दीज 4 यूनिट्स अलोंग विद स्ट्रेंथ को भी डिस्कस करेंगे और 4 यूनिट जो अपने सिलेबस में उनको डिस्कस करेंगे। लेट स्टार्ट। एक चीज और डिस्कस करनी है इसके अंदर, वेट वॉल्यूम और वॉल्यूम कंसंट्रेशन की जो यूनिट्स हैं, दीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। व्हाई दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट? बिकॉज दे डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। दोनों केसेस में सॉल्यूशन के वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं एंड वॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय द सॉल्यूशन बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली वॉल्यूम इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर कम करेंगे तो हम वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये दोनों टाइप की जो यूनिट्स हैं, जो भी इनमें different types है, they all depend on temperature. On increasing temperature always their value will decrease. Remember it, on increasing temperature always their value will increase because these all units are inversely proportional to volume of the solution। और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर इनकी वैल्यू डिक्रीज होगी और वाइस वर्सा। इफ टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी। वेट बिकॉज यहां सॉल्यूशन का वेट कंसीडर कर रहे हैं एंड वेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से वेट पर इफेक्ट नहीं होता, इसलिए जो भी वेट कंसंट्रेशन मींस मोलिलिटी है, मास परसेंटेज है, मोल फ्रैक्शन है, दे आर not affected by the temperature। Remember it because this is one of the most important concept in this topic। theoretically इसकी भी बड़ी importance है। Now first unit of concentration we will discuss here, strength। Strength, amount of solute present in 1 liter of the solution। Amount of solute in 1 liter solution, इसको सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कहा जाता है। ठीक है, therefore S is equal to amount of solute upon volume 1 liter। Suppose we have any solution वन लीटर इसका वॉल्यूम है बिकॉज 1 लीटर में डिफाइन कर रहे हैं स्ट्रेंथ को। इसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। सॉल्यूट का अमाउंट इसमें 10 ग्राम प्रेजेंट है। कोई भी सॉल्यूट हो सकता है 10 ग्राम, लाइक कॉमन सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कोई भी सॉल्यूट इसके अंदर है। इसकी मैं स्ट्रेंथ निकालूंगा। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 10 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 लीटर, देयरफॉर इट बिकम 10 ग्राम पर लीटर। अगर मैंने इस सॉल्यूशंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तरफ मैंने
100 मिलीलीटर सॉल्यूशन ले लिया और दूसरी तरफ मैंने 900 मिलीलीटर सॉल्यूशन रिमेनिंग ले लिया। बिकॉज सॉल्यूशन इज होमोजेनियस, यहाँ पर जितने भी हम बात करेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स की सब होमोजेनियस सॉल्यूशंस के लिए बात कर रहे हैं। होमोजेनियस है तो इसमें 1 ग्राम सॉल्यूट हमने मान लिया कि आ गया और इसमें कितना आ गया 9 ग्राम सॉल्यूट आ गया। नाउ द स्ट्रेंथ 1 ग्राम के लिए अगर हम बात करेंगे तो 1/100 बिकॉज ऑलवेज स्ट्रेंथ इज गिवन इन लीटर, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा। देयरफॉर स्ट्रेंथ इज अगेन 10 ग्राम पर लीटर। सिमिलरली इस सॉल्यूशन के लिए अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूंगा, स्ट्रेंथ 9/900 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू अगेन 10 ग्राम पर लीटर। क्या कंक्लूजन निकला इससे? कंक्लूजन ये निकला कि किसी भी सॉल्यूशन को अगर हम कितने भी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एज मेनी एज पार्ट्स, उसकी स्ट्रेंथ हमेशा वही रहेगी जो स्टार्टिंग में सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ थी। स्ट्रेंथ नेवर चेंज बाय डिवीजन ऑफ द सॉल्यूशन इन डिफरेंट पार्ट्स। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट यूनिट इज मोलैरिटी। अब टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों को एक साथ पैरेलली लेकर के चल रहा हूं। एक तरफ मेरे पास मोलैरिटी है कैपिटल M और दूसरी तरफ मेरे पास मोलैलिटी है स्मॉल m। इसकी यूनिट ग्राम पर मोल मीन्स कैपिटल M का मतलब ही ग्राम पर मोल होता है, या इसको मोलर सॉल्यूशन भी कह देते हैं, मोलर। इसकी यूनिट है किलो, इसकी यूनिट है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का मतलब कैपिटल M है, उसको मोलर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसकी जो यूनिट है वो मोल पर किलोग्राम है, और इसको मोलल सॉल्यूशन भी कह दिया जाता है। क्या बोलते हैं? मोलल। मोलल का मतलब बी मोलैलिटी है, मोल पर किलोग्राम का मतलब भी मोलैलिटी है, स्मॉल m का मतलब भी मोलैलिटी, इसी तरह कैपिटल M मोल पर लीटर या मोलर भी कह सकते हैं। नाउ डेफिनेशंस, कैपिटल M इज इक्वल टू N अपॉन V इन लीटर, and this is small m is equal to N upon W2 in kilogram। अभी हम बात करेंगे W2 किसको बोल रहे हैं। डेफिनेशन फिजिकल केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट जो डेफिनेशंस हैं वो मैथमेटिकल रिलेशन से ही तैयार होती हैं। उसमें हमें थियोरेटिकली डेफिनेशन याद करके फिर मैथमेटिकल रिलेशन याद नहीं करना, हमें मैथमेटिकल रिलेशन से डेफिनेशन बनानी। What is capital M? Molarity. What is N? Number of moles of solute. What is V? Volume of the solution. N? Number of moles of solute. V? Volume of the solution. Therefore, that definition become number of moles of solute प्रेजेंट इन 1 लीटर। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना ले रहे हैं? 1 लीटर, बिकॉज मोलैरिटी हमेशा 1 लीटर में दिखाई होगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज ए मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यूनिट यहीं से आई है, मोल्स की यूनिट मोल एब्रिविएट करके, और वॉल्यूम को किस में लिखेंगे? लीटर में। सिमिलरली अगर इसको हम डिफाइन करेंगे तो n तो नंबर ऑफ मोल्स ही है सॉल्यूट के, जो यहाँ है वही है, n यहाँ पर है। W2 है अमाउंट ऑफ solvent in kilogram। Therefore मोलैलिटी की जो डेफिनेशन है वो इस रिलेशन से क्या बनेगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ नंबर ऑफ मोल्स, चाहे यहां बात करें चाहे यहां बात करें, नंबर ऑफ मोल्स में बीच में लिखा हूं इसलिए दोनों के लिए है गिवन
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसको मैं W1 से रिप्रेजेंट करूंगा, अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, वैसे मोलर मास ही ज्यादा एप्रोप्रिएट है, M1 लिखेंगे। देयरफॉर दोनों तरफ अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो कैपिटल M इज इक्वल टू N की जगह W1 अपॉन M1 आ जाएगा, इनटू अपॉन B सॉरी, तो वो इनटू 1/V इन लीटर आ जाएगा। इसी तरह से स्मॉल m इज इक्वल टू W1 अपॉन M1 इनटू डिवाइडेड बाय W2 रहेगा, तो वो 1/W2 इन किलोग्राम आ जाएगा। अब यहां पर डिफरेंट केस होगा थोड़ा सा, इफ वॉल्यूम इन मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है, तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, W1 अपॉन M1 इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर। स्टार्टिंग में मैंने बताया था मोलैरिटी जो है वो 1 लीटर में डिफाइन होती है, हमेशा वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा 1 लीटर, तो अगर मिलीलीटर में दिया है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, और जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000 आएगा, वो 1000 ऊपर आ जाएगा, तो इसका एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, यहाँ पर ये नंबर 1। सिमिलरली इफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट is given in grams, तो small m is equal to W1 upon M1 into W2 in grams। अब मोलैरिटी भी हमेशा 1 किलोग्राम में डिफाइन होगी, 1 किलोग्राम में डिफाइन होगी, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करें, अगेन 1000 नीचे आएगा, वो ऊपर आ जाएगा। Formula 1 or Formula 2. Now, in both of the cases, calculation of amount of solvent, दोनों केसेस में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट W1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो W1 बड़ा सिंपल सा है, W1 इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केस ऑफ गिवन मोलैरिटी और मोलैलिटी। अगर मोलैरिटी दे रखी है तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और अगर मोलैलिटी दी हुई है तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से निकालेंगे, स्मॉल m इंटू M1 इंटू W2 इन ग्राम्स अपॉन 1000। फॉर्मूला नंबर 3 इसका और फॉर्मूला नंबर 3 इसका। क्लियर है? अगर मोलैरिटी हमारे को दी है सॉल्यूशन में और अमाउंट निकालना है, या आपके 11th क्लास में प्रॉब्लम्स हैं, 12th क्लास में भी प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर हमें मोलैलिटी दी है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे अकॉर्डिंगली। सेकंड थिंग, अगर वॉल्यूम सॉल्यूशन का किस में दिया है, हमें लीटर में दिया है, तो नीचे 1000 नहीं आएगा। सिमिलरली अगर हमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में दिया है तो नीचे 1000 नहीं आएगा। यहाँ तक दोनों के अंदर कॉमन चीजें चलती हैं, मीन्स लगभग एक जैसे ही हम निकाल सकते हैं। थोड़ी सी चीजें चेंज हैं, यहाँ पर वॉल्यूम हम कंसीडर करते हैं, यहाँ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम लिखा जाता है या सॉल्वेंट के लिए। आप लोग डेफिनेशन में भी बड़ी गलतियां करते हो, यहाँ पर भी आप सॉल्यूशन लिख देते हो, इसलिए क्लियरली रिमेंबर रखना है, याद रखना है, मोलैरिटी में हमेशा नीचे सॉल्वेंट लिखा जाएगा और मोलैरिटी के अंदर हमेशा नीचे सॉल्यूशन आएगा। मोलैरिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है, मोलैरिटी के अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट होता है। इसके बाद यहां तक तो दोनों में ये 3 फॉर्मूले लगभग कॉमन चलते हैं। अब हम दोनों के डिफरेंसेस की बात करते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है?
डेफिनेशन से ही आपको पता चल रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एक में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, और दूसरे के अंदर हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट का अमाउंट कंसीडर करते हैं। मींस ये आपकी वेट वॉल्यूम कंसंट्रेशन है और ये आपकी वेट कंसंट्रेशन। नाउ डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, बिकॉज molarity depends on volume of the solution, therefore it affected by the temperature। याद रखना इसको, मोलैरिटी वॉल्यूम पर डिपेंड करती है सॉल्यूशन के, therefore it is affected by the temperature, जबकि मोलैरिटी जो है वो सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अमाउंट पर डिपेंड करती है और अमाउंट डज नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बिकॉज दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, देयरफॉर इट इज बेटर कंसंट्रेशन, बेटर यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ओवर मोलैरिटी। टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए इसको क्या मानते हैं, बेटर कंसंट्रेशन और बेटर यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ओवर मोलैरिटी मानते हैं। इसके अलावा नाउ इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन के वॉल्यूम को इंक्रीज करना, और वॉल्यूम कैन बी ओनली इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग सॉल्वेंट। सॉल्यूट अगर इंक्रीज करेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और अगर अपन क्या करेंगे, सॉल्वेंट को इंक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, मींस डाइल्यूशन बढ़ेगा। बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अगर वॉल्यूम हम इंक्रीज करेंगे तो डाइल्यूशन का इफेक्ट मोलैरिटी पर ही होगा। जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट मोलैरिटी पर ही हो रहा है, डाइल्यूशन का इफेक्ट भी किस पर होगा, मोलैरिटी पर होगा। डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है कि मोलैरिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम बढ़ाने से मोलैरिटी हमेशा क्या होगी, सॉल्यूशन की कम होगी। आगे इसको डिस्कस भी करेंगे हम कि कैसे सॉल्यूशन की मोलैरिटी वॉल्यूम बढ़ाने से कम हो जाएगी। नाउ मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर as well as inversely proportional to volume as well as inversely proportional to dilution। इसको इस तरह से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है मोलैरिटी और मोलैरिटी की टेम्परेचर पर डिपेंडेंस, डाइल्यूशन पर तो ये डिपेंड नहीं करती, जबकि ये डिपेंड करेगी। दैट्स व्हाई दिस इज बेटर कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट, सॉरी बेटर यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ओवर मोलैरिटी। अब है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच में, उसकी बात कर लेंगे। मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच में जो डायरेक्ट रिलेशन है वो स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 इंटू D माइनस कैपिटल M इंटू M1, और मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है 1000 इंटू D इंटू स्मॉल m अपॉन 1000 प्लस स्मॉल m इंटू M1, वेयर कैपिटल M मोलैरिटी, स्मॉल m मोलैरिटी, M1 molar mass of solute, and D is the density of solution। ग्राम
पर मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर। Therefore these are the direct relation। हमें अगर मोलैरिटी दी है तो हम डायरेक्टली मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं, साथ में डेंसिटी हमें पता होनी चाहिए, और अगर हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है और मोलैरिटी दी हुई है तो भी हमें डेंसिटी पता होनी चाहिए, हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद कुछ एडिशनल फॉर्मूलाज हैं। फॉर मोलैरिटी क्या है? कैपिटल M इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 10 इंटू D इंटू एक्स अपॉन मोलर मास M1। किस केस में? इन केस ऑफ मास परसेंटेज एंड डेंसिटी आर गिवन, जहां पर D डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, X मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन और M1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक वी आर गिवन 20% NaOH सॉल्यूशन with density 1.50 gram per milliliter, then what is the molarity of the solution? molarity क्या होगी solution की? फॉर्मूला सीधा लिख रहा हूँ, वैसे आपको फॉर्मूला जो है वो लिखने का भी मार्क्स मिलते हैं, तो इसलिए इसको याद रखना है कि हमेशा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करें फॉर्मूला पहले लिखें। उसकी जो है मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ वैल्यूज। M इज इक्वल टू 10 इंटू D 1.50 इंटू मास परसेंटेज 20 अपॉन मोलर मास NaOH का होता है 40। NaOH का मोलर मास 23 प्लस 16 प्लस 1 40 हो जाएगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंटली चीज याद रखनी है कि जो मास परसेंटेज आपको दिया जाता है, जनरली 10th क्लास तक हम क्या करते हैं, परसेंटेज को हटाने के लिए बाई 100 करते हैं। ये परसेंटेज जो है इसको सीधा यूज करना है, बाई 100 नहीं करना है, बिकॉज जो फॉर्मूला पहले हमने पढ़ा है उसमें और परसेंटेज में 100 से ही ये 10 आया है, तो इसलिए आपको इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ सीधा 20 को यहाँ पर पुट करना है। रिमेंबर इट, क्योंकि आपके 11th क्लास में प्रॉब्लम नंबर 1.6 नाइट्रिक एसिड का एक एग्जाम्पल है, वो सेम इसी तरीके से सॉल्व होता है, तो उसमें बाई 100 नहीं करेंगे, इसको अच्छे से याद रखना है। ये आपकी मोलैरिटी आ गई 7.5 M और 7.5 मोलर और मोल पर लीटर। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास है इन केस ऑफ डेंसिटी एंड मोलर मास, डेंसिटी एंड मोलर मास आर गिवन। इस केस में क्या करेंगे, डेंसिटी और मोलर मास आपको दिया है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा डेंसिटी अपॉन मोलर मास इनटू 1000। डेंसिटी किसमें दी गई है आपको, ग्राम पर मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया है, तो आपके पास क्या आएगा 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, और मोलर मास आपका किसमें दिया होगा, ग्राम पर मोल के अंदर। और अगर डेंसिटी आपको किस में दी है, किलोग्राम में दी है, डेंसिटी अपॉन मोलर मास। इन केस ऑफ डेंसिटी इज गिवन किलोग्राम पर लीटर या पर मीटर क्यूब, इसमें दिया है, या
और मोलर मास फिर आपको किस में लेना पड़ेगा, किलोग्राम में लेना पड़ेगा। ये भी इसका फॉर्मूला है मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए। क्योंकि आपको 11th क्लास में एक प्रॉब्लम है आपके सिलेबस में 11.12 1.12 शायद, उसके अंदर आपको मेथनॉल का एक एग्जांपल उसमें यूज करना है आपको। नाउ डाइल्यूशन, व्हाट इज डाइल्यूशन? जब हम किसी सेम सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर देते हैं, हमारे पास ऑलरेडी एक सॉल्यूशन बना हुआ है और उसका हम क्या कर देते हैं, डाइल्यूशन कर देते हैं, मींस उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं, तो उसका डाइल्यूशन कहलाता है। वी हैव अ सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी m1 है और वॉल्यूम इसका v1 है। हमने क्या किया, इसका डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन करने पर इसकी जो मोलैरिटी है वो m2 होगी और इसका वॉल्यूम v2 हो गया। अब इनमें से ये चार क्वांटिटीज हैं। डाइल्यूशन करने पर ये ध्यान रखना है आपको कि जो मोलैरिटी है, जो सॉल्यूशन की मोलैरिटी और वॉल्यूम का जो मल्टीपल प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होगा। मींस डाइल्यूशन से पहले और डाइल्यूशन के बाद की जो मोलैरिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन है वो सेम रहेगा। Therefore m1 v1 is equal to, हम क्या लिख सकते हैं, m2 v2। इनमें से अगर कोई भी एक अननोन क्वांटिटी है तो उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर m1 हमें नहीं दिया है तो m2 v2 अपॉन v1 करके निकाल लेंगे, v1 कैलकुलेट कर सकते हैं, m2 कैलकुलेट कर सकते हैं, v2 कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर तीन सॉल्यूशन है तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 इज इक्वल टू m3 v3, बट सॉल्यूशन सेम होना चाहिए, उसी सेम सॉल्यूशन का आगे डाइल्यूशन होना चाहिए। अब हम क्या किया, हमने सॉल्यूशन 1 ये है हमारा और सॉल्यूशन 2 ये है हमारा। सेम सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, सिर्फ इनकी मोलैरिटी में डिफरेंस है। क्या है, m1 m2 का क्या रिलेशन, m1 इज ग्रेटर देन m2 बट v1 इज लेस देन v2। सॉल्यूशन 1 का की जो मोलैरिटी है वो m1 है और वॉल्यूम v1, तो मोलैरिटी m1 सॉल्यूशन 1 की मोलैरिटी सॉल्यूशन 2 से ज्यादा होगी क्योंकि डाइल्यूशन पर मोलैरिटी कम होती है, पहले हमने पढ़ लिया, और वॉल्यूम हमने इंक्रीज किया है तो v2 ज्यादा होगा। अब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया और इससे थर्ड सॉल्यूशन बना दिया। इसका जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी m और वॉल्यूम v आ गया। तो वॉल्यूम तो इन दोनों के वॉल्यूम के बराबर ही रहेगा, v1 प्लस v2, बट मोलैरिटी इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन की चेंज हो जाएगी। तो m v इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, m इज इक्वल टू m1 v1 रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर हम इसी के डाइल्यूशन से और फर्दर आगे डाइल्यूशन कर देते, तीसरा सॉल्यूशन बना देते, तो तीसरे सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3 और फर्दर आगे भी इसको कर सकते हैं। तो ये है डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन पर कैसे अगर दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया जाए, तीन को मिक्स कर दिया जाए, तो उनकी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ इस कंसेप्ट के लिए, बिकॉज ये आपको ये फॉर्मूला जो है आपका टाइट्रेशन जो कि प्रैक्टिकल्स है वहां पर आपको काम आता है। वी हैव 0.2 मोलर 500 मिलीलीटर NaOH सॉल्यूशन, जिसको मैंने डाइल्यूट करके ऑन डाइल्यूशन मोलैरिटी फाइंड करनी है ऑन डाइल्यूशन अप टू 1 लीटर। व्हाट विल बी मोलैरिटी? हमने डाइल्यूशन किए 0.2 मोलर 500 मिलीलीटर NaOH सॉल्यूशन का 1 लीटर तक क्या कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया, यानी वॉल्यूम को 500 से किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 लीटर में। तो मोलैरिटी सॉल्यूशन की क्या होगी, 0.2 मोलर ये आपकी m1, ये v1 आपका वॉल्यूम, और 1 लीटर ये आपका v2, दिस इज 1000 मिलीलीटर। वी हैव m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। हमें क्या फाइंड करना है, m2 फाइंड करना है। तो m2 फाइंड करने के लिए m1 v1 अपॉन v2
M1 आपका 0.2 है, V1 आपका 500 मिलीलीटर है, V2 आपका 1000 मिलीलीटर, सीधा 2 आ गया 0.1 मोल। जब 500 मिलीलीटर वॉल्यूम था तब मोलैरिटी कितनी थी 0.2। जब वॉल्यूम हमने इंक्रीज कर दिया, कितना 1 लीटर कर दिया, मीन्स वॉल्यूम डबल कर दिया, तो उसकी मोलैरिटी कितनी होगी, हाफ होगी। अब अगर ये मैं इसमें पुट करूं 0.2 इंटू 500 मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, या तो लीटर में कन्वर्ट कर लें, इज इक्वल टू 0.1 इंटू 1, ये ऑलरेडी लीटर में है तो ये वैल्यू कितनी आएगी 2, मीन्स 0.1 m और 0.1 m। इसलिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूले लिखते हैं m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, सेम सॉल्यूशन है, उसकी जो डाइल्यूशन है सिर्फ वो किया है, मीन्स हमने वॉल्यूम बढ़ाया है, सॉल्यूशन चेंज नहीं किया है, सिर्फ उसका वॉल्यूम चेंज किया है। अंडरस्टैंड।